लाडी शाह के बारे में और मुराद शाह के बारे में जो शब्द उन्होंने आपके टीवी के इंटरव्यू पे बोले, किसी ने तो क्या भड़कना है, जो मैंने देखा मुझे बड़ी तकलीफ हुई। ਕਿਹੜੇ ਧਰਮ ਦੇ ਸੈਂਟੀਮੈਂਟ ਹਰਟ ਹੁੰਦੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ? हर एक के वहां हर एक आदमी जाता है, हिंदू भी जाता है, सिख भी जाता है, मुसलमान भी जाता है। ਤਾਂ ਗਲਤ ਕੀ ਬੋਲਿਆ ਉਹਦੇ ਚ? गलत क्या नहीं बोला, ਦੱਸੋ ਨਾ, ਇੰਸਟੈਂਸ ਦਿਓ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਗਲਤ ਬੋਲਿਆ ਗਿਆ। देखिए जसबीर ने जिस तरह की आपके इंटरव्यू के अंदर बातचीत की, वो बातचीत सीधे तौर पर पंजाब के अंदर फिर आतंकवाद लाने की। ਜੋ ਗੱਲ ਕਹੀ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਅਸਹਿਮਤ ਹੈਗੇ ਤਾਂ ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਕੋਈ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਥੋੜੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਮੰਨੋ। वो धक्के के साथ ही कह रहा है, वो अपने मोहल्ले में अपने घर में बैठ के कहे। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੱਟੂੰਗਾ ਨਹੀਂ, ਸਵਾਲ नहीं करूं। अगले 5 मिनट ਤੁਸੀਂ सिर्फ मुराद शाह ਦਾ कंट्रीब्यूशन दसो। उनका कंट्रीब्यूशन सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन है कि समाज के अंदर वो यूनिटी एस्टेब्लिश कर रहे हैं कि जो मुराद शाह है, जो लाडी शाह है, उनके फॉलोअर्स, उनको मानने वाले, उनमें आस्था रखने वाले आज पूरे वर्ल्ड में बैठे हैं। ਉਹ ਤਾਂ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਦੇ ਵੀ ਬੈਠੇ ਹੈ। आज तक अदालतों ने कोई गलत फैसले नहीं दिए। ਅੱਛਾ, ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਗਲਤ ਹੈ? नहीं, अभी मैटर सब जुडिस है। राम रहीम ने किसी कॉन्स्टिट्यूशन को चैलेंज नहीं किया, किसी चीफ मिनिस्टर को नहीं मारा। क्या सरदार बेअंत सिंह को आप सिख नहीं मानते? मैं नहीं मानता। बेअंत सिंह ने की कीता? बेअंत सिंह ने 25,000 ਨੌਜਵਾਨ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਭਾਈ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਖਾਲੜਾ ਰਿਸਰਚ ਕਰਕੇ ਗਏ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਰਸ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਜਰਾ ਵੀ? ਮਾਵਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ 16 ਸਾਲ ਦੇ ਘਰਾਂ ਚੋਂ ਚੱਕ ਕੇ KPS ਗਿੱਲ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਚ ਮਾਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਹਿੰਦੂ ਵੀ ਤਾਂ ਮਰਿਆ ਪੰਜਾਬ ਦਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਰਸ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ? 35,000 हिंदू मरा है। ਤਰਸ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ? क्या कभी आपने हमारे तरस की लड़ाई लड़ी? 25,000 ਨੌਜਵਾਨ ਜਦੋਂ ਚੱਕ ਕੇ ਮਾਰੋਗੇ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਜਸਟੀਫਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ? आपको लालड़ू वाली घटना का पता है? ਮੈਨੂੰ ਸਾਰੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਜਨਾਲੇ ਦੀ ਘਟਨਾ ਵੀ ਦੱਸ ਦੂੰਗਾ, ਮੈਂ ਮੁਕਤਸਰ ਦੀ ਘਟਨਾ ਵੀ ਦੱਸ ਦੂੰਗਾ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਘਟਨਾਵਾਂ ਕੋਟ ਕਰ ਸਕਦਾ ਜਿੱਥੇ ਹਿੰਦੂ ਵੀਰ ਮਾਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਕਿਹਨੇ ਮਾਰੇ? ਉਹ ਜੋ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੇ ਛੱਡ ਦਿੱਤੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਾਰ ਦਿੱਤੇ। ब्लैक एंड व्हाइट पे बताओ कहाँ है? ਤੁਸੀਂ 35,000 ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦਿਓ ਮੈਨੂੰ, ਕਿੱਥੇ 25,000 ਦੀ ਤਾਂ ਗਿਣਤੀ ਹੈ। नहीं, मैं 35,000 की गिनती भी दे दूंगा आपको। 3500 ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦਿਓ ਤੁਸੀਂ। दे दूंगा मैं, अगले नेक्स्ट इंटरव्यू के अंदर मैं होमवर्क करके आऊंगा। आप 25,000 की गिनती मुझे 100% ਹੁਣੇ ਲਓ। अभी दे दो। ਭਾਈ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਖਾਲੜਾ ਦੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ਤੇ ਹੁਣੇ ਜਾਣੇ ਆਪਾਂ। ਲੈਪਟਾਪ ਦਿਓ ਖੁੱਲਾ ਤਾਂ ਇੱਥੇ। नहीं, भाई खालड़ा की ਲੈਪਟਾਪ ਲਿਆਓ, ਹੁਣੇ ਖੋਲ ਕੇ ਦਿਖਾਣਾ ਤੁਹਾਨੂੰ 25,000 ਦੀ ਗਿਣਤੀ। ਵਿਕੀਪੀਡੀਆ ਦਾ ਲਿਖਿਆ, ਪਰ ਮੈਂ ਜੇ ਵਿਕੀਪੀਡੀਆ ਤੇ ਵੀ ਯਕੀਨ ਨਾ ਕਰਾਂ, 25,000 ਬਕਾਇਦਾ ਤੌਰ ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਸਰ। वो आपको ये कैसे पता है वो इनोसेंट थे? ਨਹੀਂ ਸੀਗੇ। 25,000 ਬੰਦਾ ਅੱਤਵਾਦੀ ਸੀਗਾ। पूरा पंजाब 5-4 बजे बंद हो जाता था। 14 ਸਾਲ ਦੇ ਬੱਚੇ ਅੱਤਵਾਦੀ ਸੀਗੇ। 14 बच्चा तो क्राइम करने वाले की कोई उम्र थोड़ी होती है, ना क्राइम करने वाले का कोई धर्म होता है। ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦਾ 25,000 ਨੌਜਵਾਨ ਜਿਹੜਾ ਮਾਰਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਸਾਰਾ ਅੱਤਵਾਦੀ ਸੀਗਾ। ਪ੍ਰੂਵਨ ਗੱਲ ਹੈ। खालड़ा कौन था? खालड़ा कौन था? खालड़ा खुद टेररिस्ट था। ਤੁਸੀਂ ਗੁੱਸੇ 'ਚ ਨਾ ਆਓ। ਬਕਾਇਦਾ UNO 'ਚ ਰਿਪੋਰਟ ਗਈ। UNO 'ਚ ਖਾਲੜਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਭਾਸ਼ਣ ਹੈ। ਕੈਨੇਡਾ ਉਹ ਗਏ ਜਦੋਂ, ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਭਾਸ਼ਣ ਹੈ। ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਔਨ ਰਿਕਾਰਡ ਹੈ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਹਵਾ 'ਚ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕੋਈ ਵੀ। हम 84 का काला दौर याद करें, क्यों? उसको भूल जाओ। बुरी चीज आप क्यों बताते हो किसी को क्यों टीस करते हो? 10वें गुरु का फरमान है, सब सिखन को हुक्म है गुरु मानो ग्रंथ। गुरु ग्रंथ जी मानियो प्रगट गुरां दी दे। फिर जरनैल सिंह भिंडरांवाला के जो बोर्ड हैं फोटोओं के, वो गुरुद्वारों में क्यों लग रहे हैं? उनका क्या कंट्रीब्यूशन है जी? वो लगते रहणगे। ठीक है, अपने घर लगा ले। आपने अपने घर लगाना, जरनैल सिंह भिंडरांवाला का पोस्टर लगाए। ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜੇ ਇੰਨਾ ਜ਼ਹਿਰ ਉਗਲਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਰਲ ਕੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇੰਟਰਵਿਊ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦੇ। ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਜਸਬੀਰ ਜੱਸੀ ਹੋਣਾ ਦੇ ਨਾਲ ਮੁਰਾਦ ਸ਼ਾਹ ਬਾਰੇ ਇੱਕ ਇੰਟਰਵਿਊ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਮੁਰਾਦ ਸ਼ਾਹ ਦੇ ਕੰਟਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਬਾਰੇ ਉਹ ਸਵਾਲ ਕਰਦੇ ਆ। ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪੱਖ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ। ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਓਪੀਨੀਅਨ ਸੀ ਕਿ ਹੋਰ ਓਪੀਨੀਅਨਸ ਵੀ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਲਏ ਜਾਣ, ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਪੱਖ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਮਸਲਾ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਨਾ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ। ਅੱਜ ਵਿਸ਼ਵ ਹਿੰਦੂ ਤਖਤ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਵਿਰੇਸ਼ ਸਾਂਡਲੀਆ ਸਾਹਿਬ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਨੇ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਤੇ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਪੰਜਾਬ, ਹਿੰਦੂ ਸਿੱਖ ਏਕਤਾ ਤੇ ਹਰਿਆਣੇ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮਸਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ। ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ। थैंक यू। आपके सभी SM TV के जो मुझे सुनने वाले दर्शक हैं, उनका सबका धन्यवाद। आपका भी धन्यवाद।
ਤੁਹਾਡਾ ਉਸ ਇੰਟਰਵਿਊ ਬਾਰੇ ਓਪੀਨੀਅਨ ਕੀ ਹੈ? ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਪੂਰੀ ਗੱਲਬਾਤ ਸੁਣਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਚਰਚਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਮੁਰਾਦ ਸ਼ਾਹ ਨਾਲੋਂ ਤਾਂ ਜਸਬੀਰ ਜੱਸੀ ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰਦਾਸ ਮਾਨ ਦਾ ਕੰਟਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਵੱਡਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਡਾ ਓਪੀਨੀਅन ਕੀ है? देखिए, मैंने आपके टीवी पे वो इंटरव्यू सुना और बड़ा डीपली जो दोनों तरफ से, आपकी तरफ से जो सवाल थे और जो सिंगर जस्सी जी हैं उनकी तरफ से जो जवाब सवाल थे, वो जवाब सवाल कोई उनका कोई तर्क नहीं था, लॉजिक नहीं था। वो एक इंटेंशनली इंटरव्यू लगा मुझे। वो इंटरव्यू ऐसे लगा कि किसी को खुश करने के लिए दिया गया, उसका क्या फायदा होगा क्या नुकसान होगा ये नहीं देखा गया। किहनू खुश करने लई? ये नो वेरी वेल कि वो तो जस्सी बताएगा कि किसको खुश करने के लिए किया, लेकिन जो मेरा जो कंसेप्ट है, जो थॉट्स है मेरा, वो मुझे ये लगा कि ये कहीं ना कहीं लोगों के सेंटिमेंट्स, उनके धार्मिक भावनाओं को भड़का के। ਕਿਹੜੇ ਧਰਮ ਬਾਰੇ ਉਹਦੇ ਜ਼ਿਕਰ ਹੋਇਆ? ਕਿਹੜੇ ਧਰਮ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਿਹਦੀ ਧਾਰਮਿਕ ਭਾਵਨਾਵਾਂ डिस्टर्ब होंदियां? देखो, लाडी शाह के बारे में और मुराद शाह के बारे में जो शब्द उन्होंने आपके टीवी के इंटरव्यू पे बोले, जो लोगों ने देखा, उससे और किसी ने तो क्या भड़कना है। जो मैंने देखा मुझे बड़ी तकलीफ हुई। ਕਿਹੜੇ ਧਰਮ ਬਾਰੇ? ਮੈਂ ਧਰਮ ਦਾ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਤੁਸੀਂ ਲਾਡੀ ਸ਼ਾਹ ਮੁਰਾਦ ਸ਼ਾਹ ਦੀ ਨਹੀਂ। ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਆਪਾਂ ਉਹਦੇ ਲੌਜਿਕ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਕਿਹੜੇ ਧਰਮ ਦੇ ਸੈਂਟੀਮੈਂਟ ਹਰਟ ਹੁੰਦੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ। हर एक के वहां हर एक आदमी जाता है, हिंदू भी जाता है, सिख भी जाता है, मुसलमान भी जाता है। कौन सा किस समाज का व्यक्ति, किस धर्म का व्यक्ति जो है नकोदर में नहीं जाता? ਤਾਂ ਗਲਤ ਕੀ ਬੋਲਿਆ ਉਹਦੇ ਚ? गलत क्या नहीं बोला, ਦੱਸੋ ਨਾ, ਇੰਸਟੈਂਸ ਦਿਓ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਗਲਤ ਬੋਲਿਆ ਗਿਆ। देखिए, जिस तरह की जो जसबीर ने जिस तरह की आपके इंटरव्यू के अंदर बातचीत की, वो बातचीत सीधे तौर पर पंजाब के अंदर फिर आतंकवाद लाने की, एक पंजाब का माहौल खराब करने की। ਪਿੱਛੇ ਗੁਰਦਾਸ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਸੇ ਬਾਰੇ ਕੁਐਸਚਨ ਕਰ ਦੇਣਾ, ਮੈਂ ਟੋਕ ਰਿਹਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਥੇ, ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਸਿੱਧਾ ਅੱਤਵਾਦ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਹੋ ਵੀ ਅੱਤਵਾਦ ਆ ਜਾਊਗਾ ਇਹਦੇ ਨਾਲ, ਇਸ ਇੰਟਰਵਿਊ ਦੇ ਨਾਲ। ਭਗਵਾਨ ਰਾਮ ਚ ਮੰਨਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ? ਹਾਂ, ਯੈਸ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਸਥਾ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਆਸਥਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਪ੍ਰਤੀ? ਬਿਲਕੁਲ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ, ਕਿਸ ਨਜ਼ਰੀਏ ਨਾਲ ਦੇਖਦੇ ਹੋ? मैं उनको अपना भगवान मानता हूँ, इष्ट मानता हूँ उनको, अपना क्यों मानते हो? देवता मानता हूँ। क्यों मानते हो? मेरी भावना है, उनके अंदर आस्था है मेरी। कोई कंट्रीब्यूशन है ना उनका? उनका बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है ना? यस। सारी दुनिया ਮੰਨਦੀ है ना। इस सृष्टि ਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਐਸਾ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿ ਦੇ ਵੀ ਭਗਵਾਨ ਰਾਮ ਦਾ ਕੋਈ ਕੰਟਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹਰ ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਮਰਿਆਦਾ ਪੁਰਸ਼ੋਤਮ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਨਹੀਂ ਸ਼ਿਵ, ਭਗਵਾਨ ਸ਼ਿਵ ਦਾ ਕੰਟਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਮੰਨਦੇ ਹੋ? ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ। ਕ੍ਰੀਏਟਰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਆਪਾਂ, क्रिएटर ने हो। हाँ बिल्कुल क्रिएटर। गुरु नानक साहब का कंट्रीब्यूशन है, बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है समाज के लिए। प्रॉफिट मोहम्मद साहब का कंट्रीब्यूशन मानते हो? बिल्कुल मानता हूं। ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਹੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੰਟਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਹੈਗੇ ਤੇ ਮੰਨਦੇ ਹੋ, ਇਹੀ ਸਵਾਲ ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ ਤੇ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦਿਓ। ਤੁਸੀਂ ਜਵਾਬ, ਮੇਰਾ ਸਵਾਲ ਲੈ ਲਓ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਇਹਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦਿਓ ਵੀ ਮੁਰਾਦ ਸ਼ਾਹ ਦਾ, ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਜਸਬੀਰ ਜੱਸੀ ਵੀ ਕੋਈ ਕੰਟਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਦੱਸ ਦਿਓ ਕੀ ਹੈ। ਜਸਬੀਰ ਜੱਸੀ क्या अथॉरिटी है? जसबीर जस्सी मसला नहीं है इत्थे, मसला ये है कि आपके टीवी के ऊपर बैठ के जसबीर जस्सी ने मुराद शाह को, लाडी शाह को, सिगरेट पीने को, सारी चीजों को जो है एरर कर दिया। वो क्या अथॉरिटी है? वीडियोस देखी हैं तुसी? मैंने सब कुछ देखा है, मैं वहां प्रैक्टिकल भी देखा है। देखा क्या जसबीर जस्सी ने वहां एक मुराद शाह दी वो वीडियो देखी जिथे वो शराब पी रहे है? नहीं, मैंने वो वीडियो कभी नहीं देखी। ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਡੇਰਿਆਂ ਤੇ ਸਿਗਰਟਾਂ ਪੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਜਿਹਦੀ ਜੱਸੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਦੇਖੀਆਂ ਤੁਸੀਂ? मैं अभी उज्जैन गया, उज्जैन के अंदर जो भैरव का मंदिर है वहां मैंने शराब चढ़ाई भी और शराब पी भी। कलकत्ता देवी काली माता का मंदिर है, वहां शराब चढ़ती भी है, जो है मीट चढ़ता है वहां। तो क्या इसका क्या तर्क है? फिर पटियाला काली माता मंदिर में शराब चढ़ती है। ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਾਲੀ ਮਾਤਾ ਕਾਲੀ ਦੇवी ਤੇ मुराद शाह बराबर ने, सेम ने? नहीं, आप आस्था, तन्ने जट की क्या आस्था थी? तन्ने जट की क्या आस्था थी? उसने पत्थर के अंदर भगवान पैदा कर दिया था। पहला गुरु माँ, दूसरा गुरु पिता, तीसरा गुरु शिक्षक, चौथा गुरु भगवान। आप कहो जी मैं अपनी माँ को गुरु नहीं मानता, तू ना मान, तू छोड़ दे अपनी, तू अपने तक रख सीमित। तू समाज में उसका मैसेज क्यों दे रहा है कि हर व्यक्ति जो अपनी माँ को गुरु ना माने? क्या मैसेज दे रहा है? ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜੋ ਗੱਲ ਕਹੀ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਸਹਿਮਤ ਹੈਗੇ ਤਾਂ ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਕੋਈ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਥੋੜੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਮੰਨੋ। वो धक्के के साथ ही कह रहा है, वो अपने मोहल्ले में अपने घर में बैठ के कहे, वो टीवी पे बैठ के एसएम टीवी इंटरव्यू दे रहा है,
आप पक्कड़ साहब, आप उसका इंटरव्यू ले रहे हो, आप उसका इंटरव्यू ले रहे हो। समाज के अंदर वो आज ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਮਾਂ ਕਾਲੀ ਨੂੰ ਤੇ ਮੁਰਾਦ ਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰ ਬਿਠਾਤਾ, ਕੱਲ ਨੂੰ ਕੋਈ ਮੈਨੂੰ ਕਹੂਗਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਵਿਰੇਸ਼ ਚਾਂਡਲੀਆ ਦੀ ਇਸ ਗੱਲ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਨਹੀਂ ਆ, ਫਿਰ देखिए गुरु, ये पंजाब, ये हिंदुस्तान, ये गुरुओं का, पीरों का, ऋषियों का, मुनियों का देश है। भगवान राम के भी गुरु जो हैं वो ऋषि मुनि तो थे। कौन थे वो? ऋषि मुनि थे। इनको हमारे समाज ने किसी ना किसी रूप में अपना पीर पैगंबर मान लिया। उस पीर पैगंबर पे कंट्रीब्यूशन, मैं तो खुला समय मैं बोलूंगा नहीं हुण, मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੱਟੂंगा नहीं, सवाल नहीं करूं। अगले 5 मिनट तुसी सिर्फ मुराद शाह दा कंट्रीब्यूशन दसो। उनका कंट्रीब्यूशन, सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन है कि समाज के अंदर वो यूनिटी एस्टेब्लिश कर रहे हैं। हिंदू सिख भाईचारे की, हिंदू मुस्लिम भाईचारे की वो यूनिटी बना रहे हैं। वो समाज के अंदर बुराइयों को उखाड़ फेंकने की बात करते हैं। वहां आपका एक जो है, आपकी एक आस्था जुड़ी हुई है कि नकोदर जाएंगे, नकोदर में हम अगर कोई बात करेंगे अपनी मांग, वो मांग हमारी पूरी होती है। उस नकोदर की धरती से कितनी चीजें जुड़ी हुई हैं मुराद शाह से, लाडी शाह से, कि वहां गुरदास मान की गड्डियां तक खड़ी हैं। और जिस तरह के कंसेप्ट, जिस तरह की चर्चा रहती है, मैं भी 2 बार गया वहां, मुझे कोई वहां इस तरह की कोई सिगरेट पीने वाला नहीं मिला, मनु इतना सा टुकड़ा नहीं मिला सिगरेट का। तो जसबीर जस्सी जैसे व्यक्ति को मैं तो समझता हूं कि कहा तो उसको अमृतपाल सिंह क्या कर रहा था? अगर जसबीर जस्सी गलत नहीं है तो फिर अमृतपाल सिंह भी गलत नहीं है। अमृतपाल ਨੂੰ गलत कौन कह रहे हैं? नहीं, अगर जसबीर जस्सी नहीं है पंजाब के लोगों की और पंजाब सरकार की नजरों में, पंजाब ਚ ਤਾਂ ਅਮਰਤਪਾਲ ਨੂੰ ਕੋਈ ਗਲਤ ਕਹਿੰਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। मैंने सबसे पहले गलत कहा। ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਨਾ ਪੰਜਾਬ ਚ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ। मैं जसबीर जस्सी को भी तो मैं ही कह रहा हूं। जब रविदास जी के विषय को लेके गुरदास मान जी ने बात की ना, बेदी उनके बारे में जब बात की थी, बेदी जी के बारे में, तो इतने इशू बना के FIR दर्ज कर दी थी जलंधर में गुरदास मान के बारे में। तो वो क्या इशू था? धार्मिक भावनाओं का तो इशू था कि आप एक इक्वल कैसे कर दिया आपने। तो जसबीर जस्सी का जो इंटरव्यू है वो कहीं ना कहीं पंजाब के लिए नहीं, आज विश्व के अंदर जिस तरह भगवान राम का जो 22 जनवरी को रामलला का एक प्राण प्रतिष्ठा का प्रोग्राम हुआ, उसमें विश्व के लोग आए हुए थे। इसी तरह आप इस बात को इग्नोर नहीं कर सकते, दरकिनार नहीं कर सकते कि जो मुराद शाह है, जो लाडी शाह है, उनके फॉलोअर्स, उनको मानने वाले, उनमें आस्था रखने वाले आज पूरे वर्ल्ड में बैठे हैं। ਉਹ ਤਾਂ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਦੇ ਵੀ ਬੈਠੇ हैं, बिल्कुल बैठे हैं। ਉਹ ਬਲਾਤਕਾਰੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਕਾਤਲ ਹੈ, ਤੇ ਫਿਰ ਇਹਦਾ मतलब ਅਸੀਂ ਬਲਾਤਕਾਰੀ ਤੇ ਕਾਤਲ ਕਹਿਣਾ ਛੱਡ ਦਈਏ। मुराद शाह, लाडी शाह के ऊपर कौन से कत्ल के नहीं है ना, नहीं है। ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੋਕ ਬਹੁਤ ਫੋਲੋ ਕਰਦੇ ਆ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੋਕ ਤਾਂ ਫਿਰ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਨੂੰ ਵੀ ਫੋਲੋ ਕਰਦੇ ਆ। क्या फिर झूठे सिर्फ फॉलो कर देना कोई मापदंड? राम रहीम की बात करते हो, क्या राम रहीम आज तक अदालतों ने कोई गलत फैसले नहीं दिए? अच्छा, ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਗਲਤ ਹੈ? नहीं, अभी मैटर सब जुडिस है, हाई कोर्ट में अपील पेंडिंग है। ਕਿਹੜੇ ਦੋਨੋਂ ਕੇਸਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੂੰ 10-10 ਸਾਲ ਦੀ 20-20 ਸਾਲ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਹੈ। अपील तो ਉਹ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਮੈਟਰ ਪੈਂਡਿੰਗ ਹੈ। मैं कह रहा हाई कोर्ट में अपील तो पेंडिंग है, अपील तो पेंडिंग है। तो ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਰਾਮ रहीम जे करके गया उन्हें ना कत्ल किया ना राम रहीम की प्रीवियस वर्किंग देखो ना, उन्होंने इससे पहले क्या किया। और मतलब मैं सारी जिंदगी कोई काम करता रहा ते फिर 2 बच्चियां दे रेप कर दिया ते फिर मैं कहां पीछे मैं की कीता? आप भी डाइवर्ट हो रहे हैं। नहीं, मैं डाइवर्ट नहीं हो रहा। तुसी राम रहीम तुसी क्या कि मेरा सवाल ले लो, तुसी क्या कि फॉलोशिप बहुत है, मैं मनदा बहुत फॉलोशिप होगी। जसबीर जस्सी ने जो क्या उन्होंने दा ओपीनियन है, पर तुसी दा राम रहीम दी भी फॉलोशिप बहुत है, फिर तुस तक क्लीन चिट देंगे उन्होंने। मैंने क्या कहा जी, सबसे पहले मैं ऐसा व्यक्ति था, मैंने राम रहीम को आज से 30 साल पहले, आपके बॉर्न से पहले, मैंने उसको गंदगी निकालते देखा है। आपने वो जजमेंट पढ़ी है, जो जजमेंट दी, उस जजमेंट में उन साधुओं ने ये दिया है कि हमारा रेप नहीं हुआ, लेकिन हमें बताया गया कि डेरे पे रेप होते हैं। आप जजमेंट कह रहे हो कि अदालत गलत फैसले सुना देती हैं। लेट मी कंप्लीट कर लो। आप जब तक जजमेंट से गॉन थ्रू नहीं होते, जजमेंट में क्या है, जजमेंट क्या प्रोनाउंस की गई, जज ने क्या लिखा, और जब इस केस की अपील पेंडिंग, आपसे मेरा एक सवाल है, क्या सेशन के फैसले हाई कोर्ट में जो है रिवल्ट नहीं होते? तुसी ये कह रहे हो कि अदालत गलत फैसले सुनाती है? बहुत से केसों में सुनाया जाता है। साडा जस्टिस सिस्टम ठीक नहीं है। 100% बहुत से लोग, आप
मैंने अभी पीछे जब अमृतपाल सिंह के लिए प्रोटेस्ट किया गवर्नर के बाहर, तो वहां बंदी सिखों का जिक्र आया, भी उन्होंने सजा पूरी कर ली। तो मेरी वहां आर्गुमेंट होगी कि ये बंदी सिख नहीं है। आप जो लोग, एक भी आदमी पंजाब या देश की जेल में जिसको कन्विक्शन कोर्ट ने हेल्ड कर दी उम्र कैद, और उसके स्टेट की मैनुअल क्या है, उसका कन्विक्शन मैनुअल क्या कहता है, कितनी सजा है, अगर वो उसने उसकी सजा पूरी कर ली, मैं अपने खर्चे पे, मेरा विश्व हिंदू तख्त अपने खर्चे पे उनकी बैटल लड़ेगा, लीगल उनको ऐड करेगा। लड़ो फिर भाई दविंदरपाल भुल्लर दी लड़ाई लड़ो तुसी। दविंदरपाल भुल्लर ਨੂੰ टिल डेथ उनको जो है सुप्रीम कोर्ट ने सुनाया हुआ है कि जब तक वो जिएगा तब तक वो जेल में रहेगा। दविंदर भुल्लर ने कौन सा बहुत अच्छा काम किया हुआ है। दविंदर भुल्लर ने बिट्टा को मारने के लिए और उन निर्दोष लोगों का जो गनमैन ਤੁਹਾਡੇ ਦੋਹਰੇ ਮਾਪਦੰਡ ਕਿਉਂ ਨੇ? ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਵਾਰੀ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਕੋਰਟ ਜਸਟਿਸ ਸਿਸਟਮ ਇਹ ਠੀਕ ਗਲਤ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ, ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਦਾ ਪਿਛੋਕੜ ਦੇਖੋ। ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਵਾਰੀ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਇਹ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘ ਨਹੀਂ, ਅੱਤਵਾਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਦਵਿੰਦਰਪਾਲ ਭੁੱਲਰ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੈਂਟਲ ਹੈਲਥ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਛੱਡਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਮੱਕੜ ਸਾਹਿਬ ਆਪ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਦੀ ਮਾਨਸਿਕ ਹਾਲਾਤ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਇਸ ਪਲੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹ ਤਾਂ ਚੌਥੇ ਦਿਨ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਬਾਹਰ ਆ ਜਾਂਦਾ। ਹੁਣ 10 ਦਿਨ ਦੀ ਹੋਰ ਵਧਾਈ ਹੈ ਪੈਰੋਲ, ਉਹ ਠੀਕ है। उनकी पैरोल, उनके लीगल राइट्स क्या है, यू नो, आपको भी पता है। दविंदर सिंह भुल्लर जो है वो कौन है, बलवंत सिंह राजोवाणा कौन है, जगतार सिंह हवारा कौन है, ये गुरु के सिक्के। जगतार सिंह तारा गुरु का सिक्के जो केस काट के जो है अपना चेहरा बदल के घूमता रहा पाकिस्तान के अंदर, ये इनका करैक्टर है, ये करैक्टर है इनका। तो राम रहीम के ऊपर जो एलिगेशन है, राम रहीम ने किसी कॉन्स्टिट्यूशन को चैलेंज नहीं किया, किसी चीफ मिनिस्टर को नहीं मारा। क्या सरदार बेअंत सिंह को आप सिख नहीं मानते? मैं नहीं मानता। जब आपने एक ओपिनियन सेट कर ली, हाँ मेरा ओपिनियन है, मैं समझदा कि वो फर्ज दी लड़ाई लई लड़े है और फर्ज दी लड़ाई लई लड़न वाला सिख है। कौन फर्ज, मतलब सरदार बेअंत सिंह ने पंजाब को रंगला पंजाब बनाया, पंजाब से काले दौर को खत्म किया। सिंह ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਵਾਲੇ ਭਾਈ ਰਾਜੋਆਣਾ ਤੇ ਭਾਈ ਹਵਾਰਾ, ਭਾਈ ਦਿਲਾਵਰ, ਹਰੇਕ ਸਿੱਖ ਲਈ ਉਹ ਸਿੱਖ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ, ਤੁਹਾਡਾ ओपिनियन है। देखो मक्कड़ साहब, वो भाई जो है आपकी फिलोसफी के अंदर, आपकी एजुकेशन के अंदर, आपके संस्कारों में होगा। मेरे लिए वो टेररिस्ट हैं, वो बलवंत ओपिनियन है ना। जो दिलावर सिंह है, दिलावर सिंह ने क्या किया? दिलावर सिंह ने पंजाब पुलिस को नीचा दिखाया। बेअंत सिंह ने की कीता? बेअंत सिंह ने 25,000 ਨੌਜਵਾਨ ਪੰਜਾਬ ਦਾ, ਭਾਈ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਖਾਲੜਾ ਰਿਸਰਚ ਕਰਕੇ ਗਏ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਰਸ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਜਰਾ ਵੀ? ਮਾਵਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ 16 ਸਾਲ ਦੇ ਘਰਾਂ ਚੋਂ ਚੱਕ ਕੇ KPS ਗਿੱਲ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਚ ਮਾਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਉਸੇ ਦੌਰ ਚ ਹਿੰਦੂ ਵੀ ਤਾਂ ਮਰਿਆ ਪੰਜਾਬ ਦਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਰਸ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ? 35,000 हिंदू मरा है, ਤਰਸ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ? क्या कभी आपने हमारे तरस की लड़ाई लड़ी? ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ आपने गुरु गोबिंद सिंह, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ, ਉਸ ਦੌਰ ਨੂੰ ਲਿਆਉਣ ਵਾਲੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਹੀਰੋ ਮੰਨਦੇ ਹੋ? किस दौर ਨੂੰ ਲਿਆਣੇ ਵਾਲੇ? ये मतलब ये KPS गिल लेके आया था टेररिज्म का दौर। 25,000 ਨੌਜਵਾਨ ਜਦੋਂ ਚੱਕ ਕੇ ਮਾਰੋਗੇ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਜਸਟੀਫਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ? आपको लालड़ू वाली घटना का पता है? ਮੈਨੂੰ ਸਾਰੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਉਸ ਗੱਲ ਤੇ ਆਉਣਾ, ਮੈਂ ਸਾਰੀ, ਤੁਸੀਂ ਕੱਲੀ ਲਾਲੜੂ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਜਨਾਲੇ ਦੀ ਘਟਨਾ ਵੀ ਦੱਸ ਦੂੰਗਾ, ਮੈਂ ਮੁਕਤਸਰ ਦੀ ਘਟਨਾ ਵੀ ਦੱਸ ਦੂੰਗਾ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਘਟਨਾਵਾਂ ਕੋਟ ਕਰ ਸਕਦਾ ਜਿੱਥੇ ਹਿੰਦੂ ਵੀਰ ਮਾਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। हाँ, ਕਿਹਨੇ ਮਾਰੇ? ਹੋ किन्ने मारे? किने मारे दसो? जो रेडिकल्स थे, जो पंजाब को तबाह करना चाहते थे, वो यही थे। सिखां दे भेस च आए हुए बंदे जो एजेंसियां ने छड़ दिते, उन्होंने मार दिते। ब्लैक एंड व्हाइट पे बताओ कहाँ है? ਤੁਸੀਂ 35,000 ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦਿਓ ਮੈਨੂੰ, ਕਿੱਥੇ 25,000 ਦੀ ਤਾਂ ਗਿਣਤੀ ਹੈ। नहीं, मैं 35,000 की गिनती भी दे दूंगा आपको। 3500 ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦਿਓ ਤੁਸੀਂ। दे दूंगा मैं, अगले नेक्स्ट इंटरव्यू के अंदर मैं होमवर्क करके आऊंगा। लिस्ट लेके आयो ਤੁਸੀਂ। देखिए आप 25,000 की गिनती मुझे 100% ਹੁਣੇ ਲਓ, अभी दे दो। ਭਾਈ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਖਾਲੜਾ ਦੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ਤੇ ਹੁਣੇ ਜਾਣੇ ਆਪਾਂ, ਲੈਪਟਾਪ ਦਿਓ ਖੁੱਲਾ ਤਾਂ ਇੱਥੇ। नहीं भाई खालड़ा की ਲੈਪਟਾਪ ਲਿਆਓ, ਹੁਣੇ ਖੋਲ ਕੇ ਦਿਖਾਣਾ ਤੁਹਾਨੂੰ 25,000 ਦੀ ਗਿਣਤੀ। वो तो सो ਕੇਸਸ ਲੜੇ ਜਾ ਰਹੇ। प्रैक्टिकली बताओ ਕਿਉਂ है? ਜੇ ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਹਿੰਦੂ ਵੀਰ ਮਾਰ ਦਿੱਤੇ गए, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਮੰਨਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਵੀ ਸਿੱਖ ਬੱਚੇ ਚੱਕ ਕੇ मैंने कब कहा? वो आपको ये कैसे पता है वो इनोसेंट थे? ਨਹੀਂ ਸੀਗੇ। 25,000 ਬੰਦਾ ਅੱਤਵਾਦੀ ਸੀਗਾ। पूरा पंजाब 5-4 बजे बंद हो जाता था। 14 ਸਾਲ ਦੇ ਬੱਚੇ ਅੱਤਵਾਦੀ ਸੀਗੇ। 14 बच्चा तो क्राइम करने वाले की कोई उम्र थोड़ी होती है, ना क्राइम करने वाले का कोई धर्म होता है। ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦਾ 25,000 ਨੌਜਵਾਨ ਜਿਹੜਾ ਮਾਰਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਸਾਰਾ ਅੱਤਵਾਦੀ ਸੀਗਾ। ਅੱਤਵਾਦੀ ਹਿੰਦੂ ਵੀ ਹੈ, ਅੱਤਵਾਦੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਹਿ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ, ਹਿੰਦੂ ਸਿੱਖ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਇਸ਼ੂ ਨਹੀਂ ਹੈ। मैं ये कह रहा कि पुलिस ने जेड़े चक्के, की पंजाब च पुलिस तशद्दुद नहीं होया? देखिए मैं एक बात मानता हूं, जो मैंने प्रैक्टिकली डीपली
पंजाब को स्टडी किया है, उसमें मुझे पता है कि पंजाब का माहौल खराब करने की एक बहुत बड़ी साजिश, जिसको जिसके पीछे सारे, उसके पीछे एक ताकत जरनैल सिंह भिंडरावाला की थी। जरनैल सिंह भिंडरावाला ने पूरे पंजाब को तबाह करने के लिए और हिंदुओं को मारने के लिए जरनैल सिंह भिंडरावाला ने कोई कसर नहीं छोड़ी। मैं आपसे बतौर हिंदू लीडर, आपको गुरु गोविंद सिंह जी की बख्शीश है ये पगड़ी। ये पगड़ी जो है हर एक आदमी को नहीं मिल सकती, जो सिर का ताज है गुरु गोविंद सिंह का ताज है। जो 5 प्यारे थे वो कौन थे? वो कौन थे? आनंदपुर साहब का इतिहास है। आनंदपुर के साहब के बाद तो गुरु गोविंद सिंह ने अमृत छका के 5 प्यारे बनाए जी, के नहीं बनाए। वो सारे अलग अलग स्टेटों से थे जी, और वो सभी हिंदू थे। आप ये मानते हो कि नहीं मानते? बिल्कुल। तो आप हिंदू इनोसेंट, आपको रिकॉर्ड के ऊपर बताओ कि किस एजेंसी ने, देश की किस अदालत ने 25,000 बच्चों को, जो 14 साल के, 15 साल के, 20 साल के जो इनोसेंट बच्चे थे, उनकी लिस्ट दो। सबसे पहले मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस करूंगा। प्रूवन गल है खालड़ा कौन था? खालड़ा कौन था? खालड़ा खुद टेररिस्ट था। ਤੁਸੀਂ ਗੁੱਸੇ 'ਚ ਨਾ ਆਓ। ਬਕਾਇਦਾ UNO 'ਚ ਰਿਪੋਰਟ ਗਈ, UNO 'ਚ ਖਾਲੜਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਭਾਸ਼ਣ ਹੈ। ਕੈਨੇਡਾ ਉਹ ਗਏ ਜਦੋਂ, ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਭਾਸ਼ਣ ਹੈ। ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਔਨ ਰਿਕਾਰਡ ਹੈ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਹਵਾ 'ਚ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕੋਈ ਵੀ। ਇਹ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਕਿ ਉਸ ਇੰਟਰਵਿਊ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਅੱਤਵਾਦ ਫੈਲਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਗੈਰ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰਾਨਾ ਬਿਆਨ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ। ਮੈਂ ਬਿਲਕੁਲ ਜਸਬੀਰ, ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਤੇ ਦੋਸ਼ ਲਾ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਮੇਰੇ ਇੰਟਰਵਿਊ ਦੇ ਨਾਲ कोई फिरकू, आपके टीवी के ऊपर देखिए, हम जो आप 4th पिलर के पार्ट हो, डेमोक्रेसी के 4th पिलर के पार्ट हो। मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾ ਦਿੰਨਾ, ਇਹ ਵੈਸੇ ਵਿਕੀਪੀਡੀਆ ਦਾ ਲਿਖਿਆ, ਪਰ ਮੈਂ ਜੇ ਵਿਕੀਪੀਡੀਆ ਤੇ ਵੀ ਯਕੀਨ ਨਾ ਕਰਾਂ, 25,000 ਬਕਾਇਦਾ ਤੌਰ ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਸਰ। ਮੈਂ ਆ ਸਾਹਮਣੇ ਇਹ ਦਰਸ਼ਕ ਬਾਅਦ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ऐसा है जी, बहुत सी चीजें सो कॉल्ड डली हुई हैं। बहुत सत्कारत हो मेरे वास्ते, तुसी देख सकते। नहीं, मैंने आपने उस टाइम कह दिया था, मैंने कोई इसके लिए प्रूफ नहीं मांगा था आपसे। लेकिन जो सोशल मीडिया पे या विकी मीडिया के ऊपर बहुत सी चीजें आपको नकली मिलेंगी, प्लांटेड मिलेंगी, बहुत सी चीजें ऐसी मिलेंगी। हर चीज उसकी सच्ची होगी, हर चीज अथॉरिटी होगी। विकी मीडिया अथॉरिटी होगी? कोई अथॉरिटी है? बताओ, सुप्रीम कोर्ट ने कोई जजमेंट प्रोनाउंस की हो, स्टेट के हाई कोर्ट ने कहा हो, कॉन्स्टिट्यूशनल किसी आयोग ने कहा हो कि ये 25,000 जो है ये KPS गिल ने मारे हैं, नजायज मरे, ये इनकी लिस्ट है, मुझे दो, वो लिस्ट दो। आपने अभी कहा है कि आपने मेरे SM TV के ऊपर सवाल खड़े। नो, मैं आपके SM TV, आप तो एक वाया मीडिया ब्रिज हो। आपने जसबीर सिंह जस्सी की बात, जो एक सिंगर है, उसने अपनी उसको कहीं लगता होगा कि शायद मेरी TRP ये बात कहने से बढ़ जाए। मुराद शाह ने उसका क्या पकड़ा 1960 में, जिस मजार वजूद में है 1960 में, उस टाइम तो ना मैं पैदा हुआ था ना जसबीर सिंह जस्सी। आज उसको ये बात कहने की 2024 में क्यों जरूरत पड़ी? इससे पहले क्यों नहीं पड़ी? 50 साल का तो जस्सी भी होगा, उसको क्यों जरूरत पड़ी? उसका इंटेंशन क्या है? और मैं, आप कह रहे हैं कि बिल्कुल, मैं ब्लैक एंड व्हाइट में, मैं इसको लेके बहुत जल्द पंजाब के DGP को मिलने के लिए उसके खिलाफ FIR दर्ज करवाऊंगा। ये कोई छोटा मसला नहीं है। इस मसले ने एक बार फिर माहौल को भड़काया हुआ है। माहौल भड़का हुआ है तो मैं सरदार भगवंत मान की सलाहका करूंगा। यहाँ भगवंत मान ने बड़ी स्थिति को कंट्रोल किया हुआ है, उसकी पुलिस फोर्स को मैं सल्यूट करूंगा। अमृतपाल सिंह को जिस तरह पंजाब पुलिस ने अरेस्ट किया, कितनी भी कैजुअलिटी हो सकती थी, लेकिन पंजाब पुलिस ने बड़े तरीके से उसको हैंडल किया और आज वो जेल में है और पंजाब बच गया, फिर काले दौर से बच गया। अभी भी ये लखा सिधाना है, ये कौन है? कौन है? ये पंजाब का माहौल खराब करने के लिए इनके पीछे कहीं ना कहीं एक ਕੀ ਗਲਤ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਲੱਖਾ ਸਿਧਾਣਾ ਤੇ ਆ ਗਏ ਹੋ। ਲੱਖਾ ਸਿਧਾਣਾ ਦਾ ਉਹ ਆਪਣੇ ਉਹ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜਨ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਯੂਥ ਨੂੰ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਬੈਠੇ ਹੋ ਅੰਬਾਲੇ, ਤੁਸੀਂ ਹਰਿਆਣੇ 'ਚ ਬੈਠੇ ਹੋ, ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਕੋਈ ਲੀਡਰ ਉੱਠ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਇੰਨਾ ਡਰ ਕਾਹਦਾ ਹੈ? मैं पंजाब में भी हूँ जी, मैं पंजाब में भी, मेरा हेड ऑफिस जीरकपुर में है जी, मैं खन्ने होता हूँ जी, मैं हरियाणा में होता हूँ जी, मैं यूपी में होता हूँ जी, मैं एक जगह का आदमी नहीं हूँ। अब मोदी गुजरात से चला, वाराणसी में चुनाव लड़ा, बहुत से ऐसे लीडर कहीं से चलते हैं, कहीं पहुंच जाते हैं। इलेक्शन लड़ना है तुसी? नहीं,
कल का तो कल की भविष्यवाणी कैसे कर दे, हम्म। कल किसको क्या लड़ना पड़ जाए। आज देश की पार्लियामेंट में जो संत पहाड़ों पे बैठते थे, जंगलों में बैठते थे, आज वो देश की पार्लियामेंट में बैठे ਤੁਹਾਨੂੰ हैं। ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਹਿੰਦੂ ਸਿੱਖ ਏਕਤਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੱਡਾ ਕੁਐਸਚਨ ਖੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਚਾਹੇ ਦੋਵਾਂ ਪਾਸੇ ਦੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਐਕਟਿਵ ਲੋਕ ਨੇ, ਉਹ ਚਾਹੇ ਸ਼ਿਵ ਸੈਨਾ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਲੀਡਰ ਹੋਣ ਤੇ ਚਾਹੇ ਸਿੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ 'ਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਐਸੇ ਭੇਖੀ ਹੋਣ, ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਐਂ ਖਰਾਬ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਜੱਸੀ ਨੂੰ ਤਾਂ ਪਾਸੇ ਰੱਖੋ, ਤੁਸੀਂ ਮੰਨਦੇ ਹੋ ਵੀ ਸਿਕਿਉਰਟੀਆਂ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਸਭ ਹੋ ਰਿਹਾ? देखो जी, मैं किसी के जिस सिक्योरिटी एक ऐसा मसला है जो इंटेलिजेंस की रिपोर्ट का ब्रिज है उसका। आईबी की रिपोर्ट है, स्टेट इंटेलिजेंस है, सीआईडी है। मैं किसी के सिक्योरिटी देने पे या किसी को सिक्योरिटी दिए जाने के को क्यों चैलेंज करूं, लेकिन मैं आपके एसएम टीवी आपकी बात से इस बात से जरूर सहमत हूं कि पंजाब के अंदर जैसे सिख रेडिकलों की कमी नहीं है, वैसे हिंदू रेडिकलों की भी कमी नहीं है। ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਮੰਨਦੇ ਹੋ? ऑन रिकॉर्ड कह रहे हो ये गल? रिकॉर्ड कह रहा हूं मैं। जो लोग अपना फायदा उठाने के लिए कुछ भी बोलने के लिए, चंद लोग, वो चंद लोग हैं, जिसमें जसवीर सिंह जस्सी भी है, वो भी, मैं उसको भी रेडिकल की संज्ञा देता हूं। वो भी कट्टर, उसने भी मुराद शाह के ऊपर टिप्पणी करके खुले आरोप लगा के एक हाथ पैरा नु एक दाढ़ी नु भगवंत उसकी गुरदास मान की तारीफ कर रहा है। भी गुरदास मान कौन है? गुरदास मान वहां का सेवादारी तो है। मैं जो गुरदास मान ते केस होया सी, मैं हादा नारा लाया सी। हरियाणा साडे चंडीगढ़ दे कन्हैया मित्तल है, उसने ये अपना अजीज है सलीम है, मास्टर सलीम, वो मलेर कोटले का एक लड़का है गायक, उनके बारे में कह दिया कि ये मुसलमान कह। मैंने सबसे पहले कन्हैया मित्तल को जो है अच्छी तरह उसको टाइट किया, भाई ये तू क्या बकवास कर रहा है, ये देश ऐसा नहीं है। यहाँ उधम सिंह ने फांसी ली, भगत सिंह ने फांसी ली, अशफाक उल्लाह खान ने भी फांसी ली। हमारे गुरुओं की कितनी बड़ी सोच थी, जिन्होंने दरबार साहब के 4 रास्ते बनाए। यहाँ किसी धर्म जाति का आदमी आए। मैं 4 दिन पहले बैठा था कहीं, मैंने कहा यार राम मंदिर बना दिया, इतना भव्य मंदिर बना दिया, लेकिन मुझे मेरे सामने एक चीज आई कि यहाँ फलाने जो है 65 रुपए की मिल रही, कोई वहां लंगर नहीं। मैं कहा जबकि वहां दरबार साहब से भी बड़ा लंगर बनना चाहिए था, जितनी बड़ी उन्होंने बात की। लेकिन आज भी मैं कहा दरबार साहब जैसा लंगर और दरबार साहब जैसी शोभा हमारे अभी भी जरूरत है। मैं कहा बहुत काम करने की मोदी जी को, हिंदुओं 100 करोड़ हिंदुओं को। अभी आप तो सिख तो देश में अल्पसंख्यक है, माइनॉरिटी में है, लेकिन मैं उस गुरु नानक देव जी को जिसने 20 रुपए पाए थे लंगर में, उनको उनके चरणों की धूल भी नहीं अपने मुंह के ऊपर उनकी डाब लेकर आऊं। पूरा देश बंद हो गया था, अगर कोई बंद नहीं हुई, गुरु नानक देव जी की दी हुई बख्शीश, लंगर बंद नहीं हुआ कोरोना काल के अंदर। तो मैं ਤੁਸੀਂ ਹਿੰਦੂ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਹਾਮੀ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਪਿਆਰ ਮੁਹੱਬਤ ਨਾਲ ਰਹੀਏ। देखो जी, मुसलमान भी रवे मलेरकोटले च वसदा, सिख भी हिंदू भी सारे रल के रहिए आपां। देखो जी, जेड़ा मेरा मूल जिला है वो अंबाला है। ਸਾਡੇ ਅੰਬਾਲੇ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਾਡੀ ਅੰਬਾਲਾ ਸਿਟੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚ ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਹੈਗਾ ਘੇਲ ਜੀ। ਉਸ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਮੈਕਸਿਮਮ ਬਣੀਏ 90% ਬਣੀਏ ਸਿੱਖ ਧਾਰੀ ਹੈ, ਕੇਸ਼ਧਾਰੀ ਹੈ, ਸਿੱਖ ਹੈ। ਉਹ ਅੱਜ ਵੀ ਮੇਰਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਭਰਾ ਜਿਹੜਾ ਵਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ 65 ਸਾਲ ਦਾ ਹੈ। ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਆਪਾਂ ये जड़े हिंदू सिख हिंदू मुसलमान, ये कुछ लोगों की एक प्लानिंग है समाज के अंदर शांति नू लांबू लाना, आग ला के अपनी बात अपनी। आज अब ये पतवंत सिंह पन्नू बोलता है इतने डॉलर देंगे, वहां चड्डा लाया हो, यहाँ लाया हो, दीप सिद्धू लाया हो। दीप सिद्धू एक्सीडेंट होके नहीं मरा जी, उसको मरवाया गया। हु इज दीप सिद्धू? तो अगर आप खालिस्तान, अगर आपने खालिस्तान ਤੁਸੀਂ ਇੰਨੀ ਤਵੱਜੋ ਕਿਉਂ ਦਿੰਦੇ ਹੋ? ਗੁਰਪਤਵੰਤ ਪੰਨੂ ਕੋਈ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਥੋੜੀ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਉਹੀ ਗੱਲਾਂ ਚੁੱਕਦੇ ਹੋ ਨਾ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਨਫਲਿਕਟਿੰਗ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਜਿਹਦੇ ਤੇ ਵਿਵਾਦ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਦੇਖिए, ਤੁਸੀਂ ਮੁਹੱਬਤ ਪਿਆਰ ਦੀ ਗੱਲ, ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਬਿਆਨ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਜਿੱਥੇ ਪਿਆਰ ਮੁਹੱਬਤ ਦੀ। ਤੁਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਭਾਈ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਹਵਾਰਾ ਬਾਰੇ ਬੋਲਦੇ ਹੋ, ਭਾਈ ਰਾਜੋਆਣਾ ਬਾਰੇ ਬੋਲਦੇ ਹੋ, ਹੁਣ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਬਾਰੇ ਬੋਲ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ। ਹੁਣ ਗੁਰਪਤਵੰਤ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਗੁਰਪਤਵੰਤ ਪੰਨੂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਹਵਾਰਾ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਸਿਰਫ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਹੀ ਕਿਉਂ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਹੋ? ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਹਵਾਰਾ ਇਨੋਸੈਂਟ ਹੈ, ही इज नॉट क्रिमिनल, ही इज नॉट टेररिस्ट। उसको अकाल तख्त का जत्थेदार बना दिया, जिसको सुप्रीम कोर्ट ने सजा दी हुई। क्या यू आर सेटिस्फाइड?
आप सेटिस्फाइड हो, मैं सेटिस्फाइड नहीं हूं, पंजाब के लोग सेटिस्फाइड नहीं है। जो गुरु ग्रंथ साहब से प्यार करने वाले लोग हैं वो उसको अकाल तख्त कोई छोटी चीज है जिसको आपने अकाल तख्त का जत्थेदार जेल में बैठे बना दिया? नंबर एक। नंबर दो, जब सरदार बेअंत सिंह की शहादत हुई उस वक्त हो सकता था वो इनोसेंट हो, 2004 में भी वो इनोसेंट था जब उसने बड़ैल जेल ब्रेक कर दिया, तब भी वो इनोसेंट था। अंदर से वो चिट्ठियां लिख के भेज रहा है कि हम अमित शाह को देख लेंगे। अमृतपाल सिंह कह रहा है हमने इंदिरा गांधी नहीं बख्शी तो अमित शाह क्या चीज है? ये क्या, किसको मैसेज दिया जा रहा है? ये मैसेज ये कमजोर किया जा रहा है हिंदू सिख भाईचारा। हम आप एक बात का जवाब दो, हमारी कुल देवी ज्वाला जी है, नैना देवी मैं कई बार जाता हूँ, ज्वाला जी मैं कई बार जाता हूँ, दुनिया जहान के सिख समाज के लोग वहां शीश नवाने आते हैं। तो मैं तो हिंदू सिख भाईचारे में मैं कोई फर्क नहीं, मेरे एक मैं ही कह रहा कि ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਹਿੰਦੂ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਫਿਰ ਗੱਲਾਂ ਵੀ ਬਿਆਨ ਵੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਵਾਲੇ ਦਿਆ ਕਰੋ ਨਾ। ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਕਨਫਲਿਕਟਿੰਗ ਗੱਲਾਂ ਹੀ ਕਿਉਂ ਚੁੱਕਦੇ ਹੋ ਜਿੱਥੇ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਮਸਲਾ ਤੁਸੀਂ ਸਿੱਧਾ ਅੱਤਵਾਦ ਤੱਕ, ਅੱਤਵਾਦ ਕਿੱਡਾ ਵੱਡਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਕਹਿਤਾ कि इंटरव्यू नाल पंजाब च अत्तवाद आ जाऊगा, कितना बड़ा शब्द है ये। आप इसको मुराद शाह को और लाडी शाह के ऊपर आपत्तिजनक, अपमानजनक, अभद्र शब्द, अभद्र वाणी उसका इस्तेमाल करना आप छोटी चीज समझ रहे हो? की गलत बोलिया मैं तो इंटरव्यू जिथों शुरू हुई है उसका जो इंटरव्यू मैं तुहानू ये गल कही कि भगवान राम बारे, भगवान शिव बारे, संकट मोचन हनुमान जी बारे, गुरु नानक बारे, प्रॉफिट मोहम्मद साहब बारे अज तक किसी ने कोई सवाल नहीं किया क्योंकि कंट्रीब्यूशन है समाज दे विच। जस्सी कह रहा है कि मुराद शाह दा कंट्रीब्यूशन की है। हुण इहदे च मेरा सवाल ले लो कि इहदे च अपद्दर की होया, गलत की होया, उन्हां दी शान दे खिलाफ की होया? शान मैं कहता हूं कि उसके खिलाफ, जसबीर जस्सी के खिलाफ जब FIR दर्ज होगी तो आपको पता चलेगा कानून कितना खिलाफ इस चीज को खिलाफ मानता है। आप जसबीर जस्सी को ये इशू उठाने की 1960 आज 40 60 62 साल के बाद उसको क्यों याद आया? हम 84 का काला दौर याद करें क्यों? उसको भूल जाओ। बुरी चीज आप क्यों बताते हो किसी को क्यों टीस करते हो, क्यों छेड़ते हो? ये कह रहे हो जिहदी आस्था उन्हें मन्नन दिओ, तुसी ना, मतलब कोई बोले ना। नहीं, आप मेरी बात समझो। जो 10वें गुरु हैं उन्होंने कहा सब सिखन को हुक्म है गुरु मानो ग्रंथ। गुरु, मैं आपको कहूं जी आप क्यों मान रहे यार, चल मूर्ति पूजा करेंगे, मैं आपको क्यों टीस करूं? आप सिख हैं, गुरु 10वें गुरु ने कहा, मैं तो आज से 20 साल 25 साल पहले लोगों को कहा था ब्राह्मण, मैं ब्राह्मण फेस हूं। मैंने कहा था कि हर ब्राह्मण जिस तरह भगवान परशुराम की जन्मदिन को मनाता है उस तरह भगवान परशुराम की जिस तरह मनाया जाता है उस तरह ही गुरु तेग बहादुर जिसने मेरे तिलक की और जनेऊ की रक्षा करके अपना शीश दे दिया और 10वें गुरु ने सनातन को बचाने के लिए सब कुछ दे दिया। आज ये कहीं ना कहीं जिस तरह हम भगवान राम को पूज रहे हैं, जिस तरह हम शिव को पूज रहे हैं, उज्जैन जाके वाराणसी पूज रहे हैं, हमें गुरु तेग बहादुर को, हिंदुओं को गुरु तेग बहादुर को भी उस तरह ही पूजना चाहिए। मैं तो आपके चैनल के माध्यम से मोदी जी से मांग करूंगा कि जिस तरह मोदी जी ने बाल दिवस दिल्ली में हर पिछले 2 साल से मना रहे हैं, ऐसे गुरु तेग बहादुर के बड़े बड़े समागम करने चाहिए, उनके मंदिर बनाने चाहिए, क्योंकि मंदिर नहीं हो सकते। चलो गुरु साहब दे मंदिर नहीं हो, फिर ਤੁਹਾਡੀ मंशा माड़ी नहीं है, पर गल कन्फ्लिक्टिंग हो जाएगी। गुरु साहब के मंदिर, आप मैनू एक बात बताओ, 10वें गुरु का फरमान है आपको, आप बड़े बुद्धिजीवी हैं, आप मक्कड़ साहब, मैं आपके इंटरव्यू देखे, जो आपके इंटरव्यू समाज के लिए एक मैसेज है, समाज को मोटिवेट करते हैं, समाज को जोड़ते हैं, तोड़ने का काम नहीं करते। और मेरी तुलना आप किसी ऐसे हिंदू लीडर से ना करें जिसका एजेंडा कोई सिक्योरिटी हो, जिसका एजेंडा न्यूसेंस क्रिएट करके किसी को डंट करना हो, किसी की धर्म को नुकसान पहुंचाना, मेरा ऐसा एजेंडा नहीं है। मैं तो 10वें गुरु का फरमान है सब सिखन को हुक्म है गुरु मानो ग्रंथ। गुरु ग्रंथ जी मानियो प्रगट गुरु दी दे। फिर जरनैल सिंह भिंडरांवाला के जो बोर्ड हैं फोटोओं के, वो गुरुद्वारों में क्यों लग रहे हैं? वो 10वें गुरु से के फरमान से भी बड़ा है। वो एक जिंदा देह है, एक इंसान है हमारे की तरह। ठीक है, अपने घर लगा ले, आपने अपने घर लगाना, जरनैल सिंह भिंडरांवाला का पोस्टर लगाए, लेकिन जो अगर आप ओपनली जरनैल सिंह भिंडरांवाला का बोर्ड लगाओगे
तो जो 35,000 फिर मसला पर हिंदू और सिख का हो गया, जो 35,000 हिंदू मरे हैं उनके परिवारों को तकलीफ आएगा कि यार मक्कड़ साहब ने पिंडराड़ा का ओपन पोस्ट बोर्ड लगा रहे हैं, फंक्शन कर रहे हैं। सिमरजीत सिंह मान है, सिमरजीत सिंह मान की उम्र बीत गई, उम्र अब उसने अब क्यों सौंप चुकी उसने पार्लियामेंट में कॉन्स्टिट्यूशन की। जब आप कॉन्स्टिट्यूशन को मानते ही नहीं, जब आप भगत सिंह के सैक्रिफाइस को मानते ही नहीं, जब आप भारत के तिरंगे को मानते ही नहीं, तो फिर आप अब की बार भी कहते हैं मैं कॉन्स्टिट्यूशन की ओथ नहीं लेता। फिर मैं मानता हूं सिखों, उसने अब अपने जानते जानते उम्र में उसने लास्ट टाइम में सिखों का बेवकूफ बनाया, सिख समाज का बेवकूफ बनाया और रेडिकल्स को हवा दी, अपना काम किया, पार्लियामेंट का मेंबर बन गया है और हिंदू सिखों को लड़वा दिया आपस में। हमें ऐसे ऐसे पंजाब में ऐसे ऐसे लोगों से, उसमें चाहे मैं ही हूं, अगर मैं भी पंजाब के अंदर लगता हिंदुओं ने वोट नहीं पाया होना सिमरनजीत सिंह मान नु। नहीं, ऐसा है जी, क्योंकि जिस कॉन्स्टिट्यूंसी से वो आते हैं संगरूर से, उसका भूगोल क्या है मुझे नहीं पता, लेकिन जहां से अमन अरोड़ा आता है वो भी वही है। तो ऐसा नहीं हो सकता कि हिंदू वोट ना मिले हों, हिंदू वोट भी मिले होंगे। मैं ये बात इसको कॉन्फिडेंशियल तरीके से, जो मैटर कॉन्फिडेंशियल है उसको मैं यहाँ प्रोनाउंस यहाँ मैं कैसे बता सकता हूँ, वो तो मैं उसका रिकॉर्ड गोन थ्रू होकर ही बता सकता हूँ। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि वो जो सिख गुरु का सच्चा सिख है, रहत में रहने वाला है, और जो हिंदू, क्योंकि हिंदू और सिख मुसलमान इनके अपने अपने धर्म है, इनके ऊपर थोपे नहीं गए। लेकिन इसको सिमरजीत सिंह मान को कोई हिंदू अगर वोट देता है, कोई हिंदू वोट देता है, मैं समझता हूँ वो गुरु का भी, उसने किसी गुरुद्वारे में भी जाने का अधिकार नहीं है। जो गुरु का सच्चा सिख है वो सिमरजीत सिंह मान जैसे लोगों को कभी प्रमोट नहीं कर सकता, जिनका एजेंडा ही पंजाब को जलाने का रहा है, जिनका एजेंडा ही पंजाब में पाड़ पाने का रहा है, जिनका एजेंडा ही आतंकवादियों को प्रोटेक्ट करने का है, जिनका एजेंडा ही विदेशों से तालमेल बना के पंजाब की पीढ़ी को, पंजाब पहले ही जो है, इन्होंने बताओ आज तक कोई एक भी शिविर लगाया हो सिमरजीत सिंह मान ने या जगतार सिंह हवारा ने या परमजीत सिंह प्योरा ने या राजोवाणा ने या दिलावर सिंह ने, वो बैठे ही जेल च दिलावर सिंह। मैं कह रहा बाहर उन्होंने कोई बाहर कोई ऐसा जन आंदोलन छिड़ा कि पंजाब का जो सिख है, यूथ है, वो नशे से बचे। बताओ, चिट्ठी लिख देते हैं तीसरे दिन हम अमित शाह को देख लेंगे, हम फलां को देख लेंगे, हम फलां को देख लेंगे। किसको डरा रहे हैं वो, किसको टेरराइज कर रहे हैं, किसको मैसेज दे रहे हैं, क्या जिताना चाह रहे हैं वो जेल में बैठ के चिट्ठियां लिख के, क्या किसको मैसेज दे रहे हैं? वो टेरराइज कर रहे हैं कि हमारे से डर जाओ, नहीं डरोगे तुम्हारा इलाज कर देंगे बेन सिंह की तरह, तुम्हारा इलाज कर देंगे इंदिरा गांधी की तरह। अब आप कहते हैं सरदार बेन सिंह के बारे में आपने खिलाफ बोल दिया, मेरे साथ मेरी सिक्योरिटी चल रही है, ये मुझे 2 मिनट में पीछे से गोलियां मार दे, क्या ये किसी गुरु का शिक्षा हो सकती है? या किसी धार्मिक ग्रंथ में लिखा हो सकता है कि जिसकी आप सिक्योरिटी हो, जिसके अंगरक्षक हो, उसको ही शोध दो, उसको ही मार दो? हो सकता है किसी ने, आपने पढ़ा है कहीं, आपको एक ड्राइवर लेके जा रहा है गाड़ी में, वो खाई में गिर दे आपको जाके, आप तो उसके ट्रस्ट के ऊपर चल रहे हो। तो मैं नहीं समझता कि किसी भी पहली पातशाही से लेके 10वीं पातशाही तक या किसी भी बड़े फिलोसफर ने किसी बुक्स में अपनी लिखा हो कि जो दुश्मन है, हमारे यहाँ तो अतिथि को ये कहा गया कि अतिथि दुश्मन भी है तो भी उसका सम्मान करो जब वो घर आ गया आपके, अतिथि देवो भव। दुश्मन के साथ भी आप नकारात्मक व्यवहार ना करो। तो आपने तो गनमैन होके, अगर सतवंत सिंह, बेन सिंह, केहर सिंह इतने मर्द आदमी थे, इतने गुरु के प्रति समर्पित आदमी थे, इतने ग्रंथ साहब के प्रति समर्पित थे, तो इंदिरा गांधी को कहते हैं बड़ा रिजाइन, तेरे को फला तारीख को मारेंगे, तेरे में दम है बचली हो। मैं आपसे एक सवाल कर रहा हूं मक्कड़ साहब, आप बड़े ही बुद्धिजीवी हो, किसी गुरु ने आज तक किसी गुरुद्वारे की आड़ में अपना बचाव किया या मैदानों में आके लड़े? 10वीं पातशाही ने सब कुछ निछावर कर दिया, क्या उन्होंने किसी गुरुद्वारे की शरण ली? जिस जरनैल सिंह भिंडरावाला को संत बताया जा रहा है, उसने दरबार साहब की पवित्रता भंग करके हिंदू सिखों पर अत्याचार किया है। खाली सिखों पर अत्याचार नहीं है, ये हिंदुओं में भी अत्याचार है। हमारी आस्था वहां भी है, मेरा परिवार महीने में एक बार वहां जाता है, वहां बैठ के लंगर खाता है लाइन में। मैं दलील देता हूं
कि भगवान राम लला आ गए हैं 22 तारीख को, लेकिन आज भी वैसा लंगर बना के दिखाओ, फ्री लंगर बांट के दिखाओ। मैं 2002 में दिल्ली से जम्मू कश्मीर तक पॉसिबल है, पैसे ਦੀ ਕੋਈ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਕਲਚਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ। ਕੀ ਦਿੱਕਤ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਕੀ ਲੱਗਦਾ? ਥੋੜਾ ਇਸ ਥੋੜੇ ਸ਼ਾਂਤ ਠੰਡੇ ਹੋ ਜਾਓ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ। ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਪੁਆਇੰਟ ਇਹਨੂੰ ਸਿਧਾਂਤਕ ਤੌਰ ਤੇ ਸਮਝਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ। ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਹਿੰਦੂ ਲੀਡਰ ਹੋ ਕਿ ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ ਟਰਸਟ ਹੈ ਦੇਸ਼ ਦਾ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਗੇ ਕਿਸੇ ਆਸਥਾਵਾਨ ਹਿੰਦੂ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਲਾ ਦਿਓ ਵੀ ਚੱਲ ਕੱਲ ਤੋਂ ਫੰਡ ਲਿਆਓ, ਦੇਸ਼ 'ਚ ਅਪੀਲ ਕਰੋ ਤੇ ਆਪਾਂ ਲੰਗਰ ਲਾਉਣਾ। ਇਹ ਕਲਚਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ। मैं आपका जो ये सवाल है, ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है आज की डिबेट का। ये जो आपने पगड़ी डाली हुई है ना, इसका कनेक्शन डायरेक्ट परमात्मा से है, गुरु साहब से है। हम पब्लिकली अपने गुरुद्वारे मंदिर में ये नहीं कह सकते किसी को कि फलां आदमी हमारा झूठे केस में डाल दिया गया, इसको बचाओ और इसके लिए पैसे दो। हम फलाना मंदिर बना रहे हैं, इसके लिए हमें दान दो। वो वहीं बैठ के लड़ने लग जाएंगे। ये कमजोरी है, क्योंकि ठीक है गल, क्योंकि हम, हमारी आबादी और आपकी सोच, आपके 10वें गुरु ने जो एक बहुत बड़े थिंक टैंक के फिलोसफर, उन्होंने ग्रंथ साहब को सब कुछ बना दिया जी। कल को मोदी जी डिक्लेयर कर दें कि राम मंदिर के अलावा कुछ नहीं है, जो कुछ भी है राम मंदिर है, 100 करोड़ हिंदू वहां सब कुछ कर देंगे। लेकिन हमारे हिंदुओं के 9 देवी हैं। अगर हमने जगराता करना है, हम निकल के 9 देवी हैं। आपके सिखों के एक दरबार साहब चले जाओ, पटना साहब चले जाओ, महाराज 5 तख्त में, ठीक है ना जी। तो एक वो, और एक अंदर से जो आपको शिक्षा मिलती है, आपको गुरुद्वारे में जाके जो आपको एक मोटिवेशन मिलती है। अब वो मोटिवेशन बहुत टाइम के बाद मुझे अयोध्या में जाके मिली, जो गुरुद्वारे में मिलती है। गुरुद्वारे सफाई भी ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ, ਬਹੁਤ ਸਫਾਈ ਸੀ ਉੱਥੇ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਮੈਂ ਬੜੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਬਾਤ, ਰੈਗੂਲਰ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ? ਮੈਂ ਇਹੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਤਾਂ ਮੋਦੀ ਜੀ ਨੇ ਅਭਿਆਨ ਚਲਾਇਆ, ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਸਫਾਈ ਕੀਤੀ। ਦੇਖੋ ਕੀ ਟਰਸਟ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਇਹਦੇ ਚ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ, ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵਿਜ਼ਨ नहीं ਹੁੰਦਾ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ? देखो जी, मोदी जी का विजन बहुत बड़ा है। सुप्रीम कोर्ट में ये केस जीता गया। सरकार चाहती तो ये मंदिर, सरकार मोदी एक ही आदमी से बनवा सकता था। बिल्कुल ठीक है, एक ही आदमी काफी था, एक की ड्यूटी लगाता है, मंदिर तूने बन जाना थी। लेकिन मोदी ने इस देश के हर आदमी का उसमें कंट्रीब्यूशन डाला। बिल्कुल, ये मील पत्थर काम है। ये मील पत्थर काम है, बहुत बड़ी सोच है। हम कोरोना काल के अंदर डेरों के ऊपर अटैक करते थे, करने वाले जो लोग हैं, ब्यास के खिलाफ भी अटैक करते हैं, निरंकारियों के खिलाफ भी अटैक करते हैं। जिस तरह जरनैल सिंह भिंडरांवाला का टकराव रहा है निरंकारियों के साथ, सारी चीजें पता है। अब वो डेरे, वो पूरे देश के जो डेरे हैं ब्यास डेरे वाले को ये भी कहा जाता है इसने जगह कब्जे करे हुए डेरे बना दिए। वो डेरे कितने फलदायक साबित हुए। कोई भी चीज, अगर आपके पास ओडी गाड़ी है, हेलीकॉप्टर है, मेरे दोस्त हैं 2-3 MP हैं, उनके पास हेलीकॉप्टर है, मैं कल को हेलीकॉप्टर यूज कर लूंगा। आपके पास होएगी साइकिल, तो आप कहां से इस्तेमाल करोगे? तो मैं मोदी जी को आपके चैनल के माध्यम से ये सलाह दूंगा कि इस जो जितना बड़ा उपराड़ा, जितनी बड़ा विजन रख के ये मंदिर बनाया गया, और जिस तरह का निमंत्रण हर घर के अंदर चावल भेजे गए, लोगों को आस्था से जोड़ा गया कि आपको अयोध्या से डायरेक्ट भगवान राम का निमंत्रण आया। लेकिन किसी को ये मोटिवेशन नहीं किया गया कि कोई प्लानिंग करो कि वहां लंगर कैसे ट्रस्ट ही करूगा ना। ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਟਰਸਟ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ SGPC ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਸਾਰਾ, ਜਾਂ ਦਿੱਲੀ ਚ ਬੰਗਲਾ ਸਾਹਿਬ ਲੱਖਾਂ ਬੰਦੇ ਲੰਗਰ ਛਕਦੇ ਹੋ, DSGMC ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਦੀ ਹੈ। देखो जी, ਤਾਂ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੋਈ ਸਿਸਟਮ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ ਪੈਣਾ ਹੈ कि ऐसा सिस्टम जब तक नहीं आएगा तब तक जो आस्था लोगों की दरबार साहब में है, लोग ठीक है वहां जा रहे हैं, मत्था टेक के आ रहे हैं, देख रहे हैं रामलीला आ गए हैं, रो भी रहे हैं, भावना भी जाग रही है, बहुत ज्यादा सब कुछ हो रहा है। ਤੁਹਾਡੇ ਤੁਸੀਂ ਜਜ਼ਬਾਤੀ ਹੋਏ? मैं तो उससे 4 बार पहले भी फैमिली लेके गया। लेकिन मेरी मांग ये है कि मोदी जी, आज मैं आपसे बात करके, इंटरव्यू से पहले भी जो मैंने बात की, मोदी जी को आप जैसे लोगों को जोड़ना चाहिए। मक्कड़ साहब, हिंदुस्तान के और वर्ल्ड में ऐसे सिख पड़े हैं,
उनको राम मंदिर के साथ राम मंदिर का ट्रस्टी बनाना चाहिए, तो एक मैसेज जाएगा समाज के अंदर। हर काम के अंदर विजन पॉलिटिक्स हो, हर सोच के अंदर विजन सत्ता हो, तो मैं समझता हूं कि भाईचारा, जब देश आजाद हुआ, मुल्क आजाद हुआ, महात्मा गांधी ने कहा कांग्रेस संगठन तोड़ दो, क्योंकि अब देश आजाद हो गया, इसीलिए बनाया गया था। लेकिन जिनकी मंशा राजनीति करने की थी, उन्होंने नहीं तोड़ा। महात्मा गांधी उससे परे हो गए। हिस्ट्री में बहुत सी चीजें ऐसी हैं जो सिख है ना जी, सिख हमारी हिंदुओं का एक प्रोटेक्टर है, कवच है एक। लेकिन वो चाहे पंजाब है, चाहे हरियाणा है, चाहे दिल्ली है, चाहे यूपी है, जिस तरह आज कुछ जो टिप्स पे भी नहीं मिलते लोग, पिंडरा वाले के बोर्ड, पिंडरा वाले के पोस्टर। ਤੁਸੀਂ ਸਮਝੋ ਨਾ ਫਿਰ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ, क्या ਵੀ ਸਿੱਖ ਪ੍ਰੋਟੈਕਟਰ ਹੈ। सिख पिंडरा वाला प्रोटेक्टर नहीं है ना। सिख मैं तो सिख शब्द वरत्या, मैं संतां दा नाम नहीं लिया, मैं तो सिख शब्द वरत्या। अभी एक शादी से होके आया डेराबस्सी के अंदर, ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਚੜਾਉਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਹੋ। ना मैं गुरदासपुर के, ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਦੇ ਹੋ ਇੰਟਰਵਿਊਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਰੋਜ਼ ਇੰਟਰਵਿਊਆਂ ਆਉਂਦੀਆਂ? बिल्कुल सुनता हूँ जी। ਇਹ ਚੜਾਉਣ ਵਾਲੀ, ਇਹ ਭਾਈਚਾਰਾ ਕਿੱਥੇ ਹੈ? ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜੇ ਇੰਨਾ ਜ਼ਹਿਰ ਉਗਲਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਰਲ ਕੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ इंटरव्यू ही नहीं होने। मैं आज आपको आपके चैनल के माध्यम से, वैसे तो हम डाइवर्ट हो गए हैं, सब्जेक्ट कुछ छोड़ता, विषय कुछ छोड़ता, प्रसंग कुछ छोड़ता, हम डाइवर्ट हो गए। लेकिन आज मैं आपके माध्यम से विश्व हिंदू तक की तरफ से मैं जिम्मेवारी से वीरेश शांडिला कह के जा रहा है कि जब तक यहाँ जरनैल सिंह भिंडरावाला के पोस्टर गुरुद्वारों में लगते रहेंगे, जब तक यहाँ सतवंत सिंह, बेअंत सिंह, केहर सिंह के अजैब घर के अंदर, जगतार सिंह हवारा के अजैब घर के अंदर, टेररिस्टों के दिलावर सिंह के अजैब घर के अंदर फोटोएं लगती रहेंगी, उनका क्या कंट्रीब्यूशन है जी? वो लगते रहणगे। नहीं, आप मेरा इंटरव्यू भी रेडी कर ले रहे हो। मैं तो ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਜੋ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਅਥਾਰਟੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। मेरा तो ये, मैं जो एज अ जर्नलिस्ट, आप मेरा इंटरव्यू बिंगे रेडी कर ले रहे हो। नहीं, मैं रेडिकल आप कह रहे हो कि मैं तो कह रहा कि मैनू ये लग रहा कि पोस्टर अजैब घर च एसजीपीसी ने कह रहे हैं कि लगते रहेंगे। एसजीपीसी ने लाया ना, मैं थोड़ी लाया। कौन है एसजीपीसी? एसजीपीसी संस्था नहीं, गुरुओं संस्था ही तो है। गुरु एसजीपीसी ने लाया, तो मैं एसजीपीसी दे उत्तों दी थोड़ी हां। मैं एसजीपीसी तो बड़ा से बड़ा तो नहीं है। मैं एसजीपीसी तो बड़ा तो नहीं हां। नहीं, आप ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਇਹ ਪੋਸਟਰ ਲੱਗਦੇ ਰਹਿਣਗੇ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਤਾਂ लगते ਰਹਿਣਗੇ क्योंकि एसजीपीसी ने लाए। एसजीपीसी तो बहुत पुरानी है। मैं टोरा साहब के बड़े नजदीक रहा, जो 27 साल प्रधान रहे। हाँ जी। अब हरियाणा के अंदर गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी बन गई, कल को कोई तुगलकी फरमान ले ले गुरुद्वारों के बारे में, मैं उसका भी विरोध करूंगा। कल पैदा हुई ਤੁਹਾਡੇ ਓਪੀਨੀਅਨ ਤੇ ਸਵਾਲ ਕੌਣ ਕਰ? ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਕਿਹਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿਣ ਦਾ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਵੀ ਰਿਹਾ, ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਤੱਕ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਿਹਾ। आपने ये कहा है मक्कड़ साहब कि वो तो लगते रहेंगे। हाँ, क्योंकि एसजीपीसी ला रही है। ये बात मैंने क्यों कही? ये बात गल कंप्लीट करो। मैंने बात इसलिए कही, आपने कहा कब तक ये हिंदू सिख भाईचारे में पाड़ पड़ता रहेगा, कब तक ये सड़कों पे जो है खून डुलता रहेगा। आप एक बात बताओ, जो निहंग सिंह है, गुरु साहब की फौज थी जी, हरजीत सिंह का सब इंस्पेक्टर का हाथ बढ़ दिया, गलत किया, बिल्कुल गलत किया। कुंडली बॉर्डर के ऊपर उसमें बांस पे टंग के उसकी टंगा बढ़ दी, बावा बढ़ दी। वो बेदबी करना आया सी। कौन बेदबी? सर, मेरा अंबाड़ा के अंदर जरनैल सिंह भिंडरावाला समर्थकों ने, एक मिनट मैं बड़ी इंपॉर्टेंट बात बता रहा जी, 2018 में मेरा दफ्तर फूक दिया। जरनैल सिंह भिंडरावाला के बोर्ड उठा के लाए, भीड़ की शक्ल में दफ्तर फूक दिया। अगर मैं होता उस दिन मुझे जिंदा फूकते थे, क्योंकि भीड़ की तो कोई शक्ल नहीं होती। नहीं है। तो मुझे आप एक बात बताओ, उन्होंने मेरा दफ्तर फूक दिया। क्या जिन लोगों ने मेरा दफ्तर फूका, भिंडरावाला का बोर्ड उठा के, भिंडरावाला की बात करके, भिंडरावाला की जय जयकार, उसने मेरे ऊपर क्या इंप्रेशन जमाने की कोशिश करी? हिंदू समाज को क्यों डराने की कोशिश करी? मैं हिंदू समाज से आता हूँ। किसी भी को ये अधिकार है कि आप जाके भिंडरावाले के खिलाफ, मैंने ये बोल दिया कि मैं जरनैल सिंह भिंडरावाला का पुतला जलाऊंगा। मैंने कोर्ट में ओपन कहा कि जरनैल सिंह भिंडरावाला को भारतीय सेना ने मारा, मेरी नजरों में वो टेररिस्ट है। आप अगर वो टेररिस्ट नहीं है तो मुझे कन्विक्शन कर दो, मैं कन्फेस कर रहा हूं। कोर्ट के पास, कोर्ट जो है मम स्पीचलेस होगी, कोर्ट तो ट्रायल चलाएगी। मैंने कहा आप ट्रायल चला के अपना टाइम क्यों खराब कर रहे? जो ये कह रही है पार्टी, इन्होंने मेरे खिलाफ मुकदमा दर्ज करा दिया 295 में कि मैंने कहा मैंने कोर्ट के सामने कहा, बिफोर द बेंच,
कि भिंडरावाला, जरनैल सिंह भिंडरावाला, मैं जिम्मेवारी से कह रहा हूं, तो जरनैल सिंह भिंडरावाला की फोटो में, जगतार सिंह हवारा की फोटो में, अब ये मोटैर के अंदर लाया सिख, ये कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में जाके पिटीशन नहीं पा सकते? वहां पर्टिकुलर जगह के ऊपर बैठ के लोगों का रास्ता जाम करके हाई कोर्ट को इंटरवीन करना पड़ रहा है, हाई कोर्ट को डायरेक्शन देनी पड़ रही है डीजीपी को, हाई कोर्ट डीजीपी को धमका रहा है, चीफ सेक्रेटरी को धमका रहा है। बट इज दिस, यहाँ पंजाब का गवर्नर पहला बनवारी लाल पुरोहित देखा, जिन्होंने डीजीपी को और चीफ सेक्रेटरी को क्रश करो जो है खालिस्तान को। भाई अगर खालिस्तान बनाना है आपने, खालिस्तान खालस शुद्ध मुसलमान मुसल्लम, हमारे हिंदुओं में मेरे कांग्रेस के बड़े सीनियर लीडर हैं हरियाणा में, जिन्होंने चौधरी देवीलाल को हराया, धर्मपाल सिंह मलिक, वो आर्य समाजी हैं। भूपेंद्र सिंह हुड्डा आर्य समाजी हैं। आर्य समाजियों में मूर्ति की पूजा नहीं होती, अगर आपको पता है, मूर्ति की पूजा नहीं होती, उनके विधि विधान अलग है, तो वो समाज से अलग थोड़ी हो गए। अगर सिख जो है गुरु ग्रंथ साहब को पूज रहे हैं, हम उनको, भगत सिंह भी आर्य समाजी सी, चलो मैंने उसके ऊपर मैंने कभी स्टडी नहीं किया, लेकिन उन्होंने परिवार आर्य समाजी सी। जो भूपेंद्र सिंह हुड्डा है या धर्मपाल सिंह मलिक है, या बहुत से लोग हैं जो आर्य समाजी हैं। अब आप हैं, आप मूर्ति पूजा नहीं करते, ये तो कहीं नहीं लिखा कि आप मेरे दोस्त नहीं हो सकते। आपका अपना धर्म है, मेरा अपना धर्म है। हाँ, आप मूर्ति पूजा ना करो, आप, मैं आपसे उच्च अपनी लकीर लंबी करके दूं कि मैं गुरुद्वारे के अंदर शीश नवाऊंगा भाई, मैं प्रसाद खाऊंगा भाई, मैं लाइन में बैठ के लंगर छकूंगा जी, देव जी प्रसादा, और यूं पूछ के और वाहेगुरु करता बाहर जाऊंगा, सबका भला हो। गुस्सा क्यों आंदा ਤੁਹਾਨੂੰ? नहीं, आपने 1 मिनट लगाया ये कहते हुए, मैं तो तर्क दे रहा ना, मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ सर ਕਿ ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਨੇ ਅਜਾਇਬ ਘਰ ਚ ਲਾਈਆਂ। सर अजैब घर के अंदर भगत सिंह की फोटो लाओ, सुभाष चंद्र बोस की फोटो लगाओ, जो हिस्टोरिकल सिख रहे हैं उनकी फोटो में लगाओ, जिन्होंने 65-71 की लड़ाई में सेक्रीफाइस किया उनकी फोटो में लगाओ, कौन रोक रहा है? आप पंजाब का माहौल वीरेश शांडिला या मक्कड़ साहब खराब नहीं कर रहे, शिवसेना के लीडर या दूसरे लीडर खराब नहीं कर रहे, कौन खराब कर रहा है? पॉलिटिकल पार्टियों को अपना विजन बदलना पड़ेगा, उनको अपना विजन राजनीति फिट करने के लिए, चुनाव की टिकट जीतने के लिए, चुनाव की सीट निकालने के लिए जो जहर कोड़ा जा रहा है। आज तो राजनीति, ये आम आदमी पार्टी बन के आई थी, मैं भी उस अन्ना के आंदोलन में शामिल हुआ था, वही मैं तो एक टाइम ऐसा आ गया था कि वर्ल्ड की मीडिया ने जो है महात्मा गांधी से भी बड़ा आंदोलन डिक्लेयर कर दिया था, अन्ना के आंदोलन को। तो हमने दिल्ली में जाके देखा, हमारा एक दोस्त है कमांडो, वो एमएलए बन गए पहली बार, तो मैं कहा यार ये तो कमांडो एमएलए बन सका तो हम तो बड़े आसान से बन जाएंगे। अब हालात ये हो गए कि हमारे हरियाणा में हमें ये पूछ रहे कि फलाने कॉन्स्टिट्यूंसी में चुनाव लड़ना है, 2 करोड़ रुपए दे, मैं टिकट दिलवा दूं। ये आम आदमी पार्टी है। भगवंत मान है, मैं एक अकेले भगवंत मान को देखता हूँ कि भगवंत मान का विजन, अगर आज तक के पंजाब की 66 में पंजाब बना, आज तक के मैं जितने, मैं कैप्टन अमरिंदर सिंह के बहुत नजदीक रहा, सरदार बेअंत सिंह के साथ मैं बहुत नजदीक रहा, मैं इतना नजदीक रहा सरदार बेअंत सिंह के ड्यू टू भजनलाल, क्योंकि जब सरदार बेअंत सिंह चीफ मिनिस्टर थे उस वक्त भजनलाल हरियाणा में चीफ मिनिस्टर थे। भजनलाल जी हमारे फैमिली मेंबर रहे हैं, आज भी उनके दोनों बेटे मेरे फैमिली मेंबर है, चंद्रमोहन और कुलदीप जी। और भजनलाल जी को भी मारने के लिए हमारा ने अंबाड़ा हिसार रोड पे RDX लगाया, अमेरिका में जाके RDX लगाया। तो ये क्या जताना चाह रहे थे? जब तक ये आप एक मुहिम चलाओ, मैं उस मुहिम में आपके साथ खड़ा हूं कि जो लोग गुरुद्वारों में, आप साहबजादों के लगाओ, जिनको साहबजादों के बोर्ड लगाओ, माता गुजर कौर के बोर्ड लगाओ, 9वें गुरु के लगाओ, 8वें गुरु के लगाओ। मुझे, हमारे यहाँ अम्बाड़ा में पंजोखरा साहब गुरुद्वारा है, वहां ये मान्यता है कि जो हर रविवार को वहां जाता है उसकी वो पूरी होती है। मैंने एक काम, दिक्कत आ गई थी मुझे, मैं 3 बार गया, चौथी बार नहीं जा सका, मेरा मुकद्दर खराब। लेकिन जो लोग गए वहां, उन्होंने बहुत कुछ गेन किया, उन्होंने बहुत कुछ गेन किया। सिखों से हमें बहुत कुछ सीखना चाहिए। आप अदरवाइज ना लेना बात, बिफोर 84 बड़े लोगों की गाड़ी पे सिख ड्राइवर होते थे, वो अपनी बच्चियों को, लड़कियों को दूर दूर तक जाओ, इनको वहां कॉलेज में छोड़ के आओ, हॉस्टल में छोड़ के आओ। 84 ने हमारे देश में वो कहानी भी पॉलिटिकल, राजीव गांधी, इंदिरा गांधी थोड़ी क्या गई थी कि पीछे से कर दियो। हमें जो पता चलता है, जो अफसरों से पता चलता है कि
इंदिरा गांधी को तो ये भी इनपुट्स मिली थी कि सतवंत सिंह बेन सिंह को हटाओ, ये आपको टारगेट कर सकते हैं, लेकिन उसने कहा नहीं, सिखों में गलत मैसेज जाएगा। कितनी बड़ी सोच थी उस औरत की। आज उसको, अब राजीव गांधी है, राजीव गांधी ने राम मंदिर का ताला राजीव गांधी ने खुलवाया, लेकिन आज वो चीज नहीं कांग्रेस प्रस्तुत कर सकी। वो मोदी की टीआरपी ज्यादा बढ़िया है, मोदी को ज्यादा अच्छा सिस्टम, उनकी मीडिया वर्किंग ज्यादा अच्छी है। लेकिन मैं आज जिस विषय को लेके आपके पास आया हूं, बात कर रहा हूं, उसमें मैं यही कह रहा हूं कि 48 घंटे के अंदर जसबीर जस्सी, जिसने सिर्फ और सिर्फ टीआरपी बढ़ाने के लिए अपनी, वो अगर उसकी नजरों में मुराद शाह का कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है, तो जो ये 2-2, 3-3, 4-4, 5-5, 6-6 लाख रुपए लेके स्टेजों पे गाना गाते हैं, इनका कंट्रीब्यूशन है। इन्होंने कौन से देशभक्ति के गाने गा दिए 65-71 की लड़ाई में, कारगिल की लड़ाई में? कितने लोगों, कितने शहीद परिवारों के यहाँ जस्सी जो है आज तक मदद देने के लिए गया। मेरा विश्व बिंदु तक कम से कम 100 परिवारों को जो है आर्थिक मदद दे चुका है, कंधा दे चुका हूं, और उत्तर भारत में हर शहीद सैनिक को कंधा दे चुका हूं, जितने भी शहीद हुए हैं। इसका कंट्रीब्यूशन क्या है? ये सिर्फ मुराद शाह, जिनके साथ करोड़ों लोग जुड़े हुए हैं, आप फिर बीच में फिर उसको राम रहीम को ले आएंगे। राम रहीम, मैं तो सुन रहा ਤੁਹਾਨੂੰ, मैं तो बोलिया ही नहीं। राम रहीम के जो काम है, नहीं, ਤੁਸੀਂ मुराद शाह ते कंप्लीट करो गल। देखिए, राम रहीम ਨੂੰ इस एपिसोड चो छड्डो। मैं ये कहूंगा कि 48 घंटे के अंदर वो आपके चैनल के ऊपर आके माफी मांग ले। अदरवाइज उसकी इंटेंशन बिल्कुल क्लियर है कि पंजाब के अंदर उसको किसी ना किसी ने फंडिंग की है। किसने फंडिंग की है, एजेंसी अपने आप देखेगी। मैं बाई नेम विश्व बिंदु तख्त की तरफ से जसबीर जस्सी, सबसे पहले आपके चैनल के ऊपर आके बताए उसका अपना कंट्रीब्यूशन क्या है, जो वो पीरों फकीरों के ऊपर को दागी कर रहा है, पीरों फकीरों के बारे में लोगों को भड़का रहा है, धार्मिक भावनाएं भड़काने की बात कर रहा है। वो बताए कि जो पंजाब में चल रहा है, जो अमृतपाल सिंह पकड़ा है, वो उसका पक्षधर है, अगर उसमें दम है बताए, उसको पता चल जाएगा। जो भगवंत मान ने किया है, उसको जेल भेज दिया है, डिब्रूगढ़ जेल में भगवंत मान ने, उसके डीजीपी ने, क्या उससे सहमत है या उसका विरोध करता है भगवंत मान का? बताए। ये किसने प्लानिंग की, कहां से प्लानिंग हुई, क्यों उसने इंटरव्यू दिया, क्या उसकी इंटेंशन है? हमारा, क्योंकि मैं कानून को जानता हूं, लॉ पढ़ा हूं, लॉ ग्रेजुएट हूं, तो बिल्कुल पंजाब का माहौल खराब करने की बहुत बड़ी साजिश जसबीर सिंह जस्सी ने रची है। अगर वो 48 घंटे, मेरा इंटरव्यू जिस दिन ही फ्लैश होता है, अगर उसके 2 दिन के अंदर वो नहीं करता, तो मैं जाऊंगा, अगर डीजीपी ने एफआईआर दर्ज ना की तो हाई कोर्ट जाऊंगा। ऐसे लोगों को बख्शना नहीं चाहिए, वो चाहे हिंदू हो चाहे सिख हो। अगर जिस दिन ये एजेंडा बना लिया ना हिंदू और सिखों ने, तो हिंदू और सिख इतनी बड़ी ताकत है। सिख जो है मार्शल कौम है, हम हिंदू जो है सिखों के बिना अधूरे हैं। अगर मेरे साथ 4 दोस्त खड़े हैं, उसमें एक सिख खड़ा है ना, तो हमारी 5 का रुतबा ही अलग हो जाएगा चारों का। सिख एक इतनी बड़ी ताकत हम है, और सिख एक इतनी बड़ी वफादार चीज है। इसको हम सिख समाज के कुछ ऐसे लोगों ने, जिनके अपने इंटरेस्ट ही पूरे नहीं हुए आज तक, भगवंत मान भी एक एजेंडा लेके चला था, वो भी कमजोर हैं। मैं भगवंत मान को भी कहूंगा, मैं भगवंत मान को आपके चैनल के माध्यम से कहूंगा, अगर आपने पंजाब के अंदर राजा महाराजा रंजीत सिंह का राज लाना है, महाराजा रंजीत सिंह के राज में अलग अलग कौमों के, बता दो आप, अगर उनके जो सलाहकार थे अलग अलग कौमों के नहीं थे, अलग अलग भाषाओं के ज्ञाता थे। तो आज पंजाब के अंदर जो है, जिस दिन जरनैल सिंह एक फरमान जारी कर दिया, जिस तरह पानिया के मसले में कैप्टन अमरिंदर सिंह ने पानिया के मसले में विधानसभा में पास किया, जो है भगवंत मान कल विधानसभा का सेशन बुला के कहते कि जो खालिस्तान की बात करेगा, जो जरनैल सिंह भिंडरावाला का पोस्टर लगाएगा, होर्डिंग लगाएगा, गुरुद्वारे में फोटो लगाएगा, और राष्ट्र देशद्रोह में जाएगा, कल बंद। अगर हिंदू ऐसा कोई काम करते हैं, किसी अपने हिंदू कोई, अब जो महात्मा गांधी का हत्यारा है गॉडसे, आपने किसी हिंदू को उसकी चित्र ठाए देखा है? किसी हिंदू को सुना है कि ये जो कहते होंगे मेरे विश्व बिंदु तख्त ने उसका झंडा कभी नहीं उठाया, उसने महात्मा गांधी को मारा, गलत मारा। ठीक है, लंबे विषय ने, फिर ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਇਹਨਾਂ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ। ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ, ਤੁਸੀਂ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ 'ਚ ਇੰਨਾ ਹੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿਓ। ਧੰਨਵਾਦ।